first? Check. So there was a problem with 7.6. What are the two stages of allocation activity based process? से ये वाली नहीं है, इससे नीचे problem है. Okay, so let's move on to problems or exercises. Problems नहीं नीचे से. इससे भी नीचे. ये exercises? Yes. 7.6. So we'll start with 7.6. Cost hierarchy? Yes. इसमें मसला है? Okay, let's do it quickly. CD Express Incorporation provides CD duplicating services for its customers. So once again, something which we used to do. आप लोगों को CD वाला ज़माना याद है? Yes. CD वाला ज़माना याद है? You were kids. Yes, sir. Okay. An order from a customer can be for a single copy or for thousands of copies. Most jobs are broken down into batches to allow smaller jobs with higher priorities to have access to the machine. A number of activities carried out at CD Express are listed below. Sales representatives periodic visits to customers to keep them informed about the services provided by CD Express. Okay. Ordering labels from the printer for a particular CD. Setting up the CD duplicating machine to make copies from a particular master CD. Loading the automatic labeling machine with labels for a particular CD. Visually inspecting CDs and placing them by hand in protective plastic cases prior to shipping. Preparation of the shipping documents for the order. Periodic maintenance of equipment. Lighting and leading the company's production facility. Preparation of quarterly financial reports. So these are the activities. Now required. Classify each of the activities above as either a unit level, batch level, product level, customer level, or organization sustaining activity. In order to duplicate a particular CD, is a product level activity. Assume the order is large enough that it must be broken down into batches. Okay? So इसका यही मसला है बस. सिर्फ आपने इसको एक्टिविटीज में लगाना है और कोई मसला नहीं. यही है. हमने 5 लेवल्स ऑफ एक्टिविटीज पढ़ी थी. याद है? यूनिट, प्रोडक्शन, नहीं, सबसे पहले Batch. ना सबसे पहले प्रोडक्ट. ठीक है? डिफरेंट लाइंस ऑफ प्रोडक्ट्स है. उसके बाद यूनिट, उसके बाद बैच, उसके बाद कस्टमर. कितने हो गए? 1 2 3 4. ओके, 5 levels of activities. Clear? Okay, let's have a look at it. Now the first one is sales representatives periodic visits to customers to keep them informed about the services provided by CD Express. जी, sales visit कौन सा हो गया? Sales visit कौन सा हो गया? जी, services. तो ये services आपका प्रोवाइड कर रहे हैं. 4 part customer level. ठीक है? So this is customer level. Let's mark them as 1 2 3 4 and 5 is organization system. Okay, so this is 4. सबको clear है? Easy ना? Next, ordering labels from the printer for a particular CD. Ordering labels from the printer for a particular CD. Labels. So unit. देखिए, बैच है या प्रोडक्ट लेवल पे? प्रोडक्ट लेवल. So 2 यूनिट. ठीक है? यूनिट और 1 प्रोडक्ट. Sir, decide कैसे करेंगे हम किस क्राइटेरिया पे? किस क्राइटेरिया पे? क्या मतलब किस क्राइटेरिया पे? जरा दोबारा बोलें. सर अंदाजा कैसे होगा कि इस पे कौन सा करेक्ट? अंदाजा तो तब पहले उसका वो देखेंगे. लेकिन if you are a bit confused, ठीक है? So let's have a look at these terms again. Terminologies को दोबारा जरा पढ़ सकते. ठीक है? Batch level activities. Batch level. पूरा का पूरा बैच जब आ जाता है बहुत सारी यूनिट्स इकट्ठे हो जाते हैं. So batch level activities that are performed each time a batch of goods is handled. Batch. एक नहीं, batch of goods. ठीक है? Okay? Batch of goods is handled or processed regardless of how many units are in the batch. Normally ज़्यादा होते हैं. The amount of resource consumed depends on the number of batches run rather than on the number of units in the batch. Units in the batch नहीं मैटर करेगा, batches मैटर करेगा. क्योंकि ये batch level पे है. जब unit level पे होंगे ना, तो फिर unit देखेंगे कि हर एक unit पे एक लगाना है स्टिकर. ठीक है? इसलिए आपसे कह रहा था कि और से देखें कि ये batch है या unit. अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये कहीं से यूनिट तो नहीं है, so let's go to
यूनिट और द प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी, प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी, प्रोडक्ट हमने कहा था कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स, activities that relate to specific products that must be carried out regardless of how many units are produced and sold or batches done. यानी units भी नहीं, batches भी नहीं, product wise. तो जो product level activity है वो product wise है. और अगर unit की बात करें तो each time a unit is produced. जब एक unit produce कर देते हैं वो unit है. जब बहुत सारे units होते हैं वो batches हैं, ठीक? और जब प्रोडक्ट वाइज है तो वो प्रोडक्ट लेवल, और बाकी वो दोनों तो बहुत क्लियर है, कस्टमर लेवल और ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट लेवल. अब जो आपने जो एग्जांपल देखी, हर एक सीडी के ऊपर एक स्टिकर लगा है, तो वो क्या है? प्रोडक्ट लेवल, प्रोडक्ट लेवल, प्रोडक्ट सीडी each time a unit is produced, तो अगर हर एक each time a unit is produced, that means it is a unit level. ठीक है, देखिए यहाँ पे वो क्लियर कर रहा है, that must be carried out regardless of how many units are produced. Regardless of how many units are produced, वो प्रोडक्ट लेवल की एक्टिविटी है, यानी पूरी प्रोडक्ट लाइन की एक्टिविटी है, प्रोडक्ट पूरी लाइन, ठीक है? और जहाँ पे आप यूनिट्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो यूनिट लेवल एक्टिविटी, ठीक? ओके, ये भी हो गया. सो किधर था ये? which question was that? नीचे 6. Six. Okay. So sales representative actually तो हो गया सर. Ordering labels from the printer for a particular CD. So that is a unit. हर एक unit के ऊपर आप कर रहे हैं. So that is a unit level. Setting up the CD duplicating machine to make copies from a particular master CD. Setting up the CD duplicating machine to make copies from a particular master CD. CD duplicating machine. CD writer होता है किस्म का, यानी CD writer जो आपके लिए CD लिख के दे रहा है और उसके ऊपर आप सेट कर रहे हैं उसको, उसके ऊपर कॉस्टिंग करोगे. बैच की हमने क्या डेफिनेशन देखी थी? कि बैच की डेफिनेशन क्या है? कि रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, एक बैच पूरा कितने का बनता है. ऊपर आपने क्या लिखा था कि अगर हम ये कर रहे हैं in order to duplicate particular CD, in order to duplicate a particular CD is a product level activity. ठीक है, ये product level activity है. Assume the order is large enough that it must be broken down into batches. जब order ज्यादा हो तो उसके batches बनाते हैं, ठीक है? जब आप batches बनाएंगे तो वो batch level की activity. जब आप एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं तो प्रोडक्ट लेवल की एक्टिविटी. So setting up the duplicating machine to make copies from a particular master CD would be product or a batch. किसकी वजह से? Assumption की वजह से batch हो जाएगा. जी क्लास, come on, give me some idea. तो मेरा आंसर बताओ. Batch level. Batch level, product level. आपको डेफिनेशन भी सारी दोबारा बता दी. प्रोडक्ट लेवल, प्रोडक्ट बैच. सर हर एक सीडी पे काम हो रहा है, हर एक सीडी पे काम नहीं हो रहा. एक सीडी से बैच लेवल, हर एक सीडी पे काम नहीं हो रहा. एक सीडी से होगा. ठीक है, एक मास्टर सीडी है जिससे आपने पूरी सीरीज करनी है. तो बैच लेवल. ओके, आगे चलिए. लोडिंग द ऑटोमेटिक लेबलिंग मशीन विच लेबल्स फॉर अ पर्टिकुलर सीडी. Loading the automatic labeling machine with labels for a particular CD. यूनिट लेवल. Labeling machine. Labeling machine है जो कि किसी एक CD पे आपने जो लेबल लगाना होता है, उस वो लेबल उससे निकलता है. किसी भी एक CD का, किसी भी एक CD का लेबल उससे निकलेगा. वो स्टिकर जो ऊपर लगता है यार, इन सिंपल वर्ड्स. वो स्टिकर के लिए आप उस सीडी को, आप उस मशीन को वो करेंगे और वो हर सीडी के लिए अलग अलग स्टिकर निकालेगा. तो जब हर सीडी के लिए अलग स्टिकर निकालेगा तो फिर यूनिट लेवल. ठीक है, आगे चलें. Visually inspecting CDs and tracing them by hand to protective plastic cases prior to shipping. Prior to shipping. यूनिट हर एक सीडी के लिए अगर हो रहा है. Visually inspecting CDs and tracing them by hand
into protective plastic cases prior to shipping. शिपिंग करने से पहले मैं चीजों को सॉर्ट करता हूँ और हर एक को उसके अपने लेबल्स में डालकर अलग अलग कर लेता हूँ. तो ये क्या है? मुख्तलिफ सीरीज होंगे. मुख्तलिफ सीरीज होंगे. हर एक सीडी का अपना केस भी तो होगा. हर सीडी का अपना केस भी होगा. हर सीडी का अपना केस नहीं होगा. Inspecting CDs and placing them by hand into protective plastic cases. प्लास्टिक केस में खाली आप डाल रहे हैं, हर एक का अलग नहीं है. अगर हर एक का अलग होता तो ये यूनिट में चला जाता. सीडी का भूल गया सब कुछ. सीडी किस तरह होती थी? सीडी होती थी, उस सीडी का केस सबका एक होता था. जब आप सीडी राइट करते थे ना, सीडी का केस एक होता था. सीडी के ऊपर आप कोई स्टिकर लगाएंगे ताकि पता चले कि किस चीज की सीडी है. एक तो वो सीडी है जो कि आपको मिलती थी विंडोज वाली और ये वाली वो वाली, उसका हर एक का लेबल अलग होता था. ठीक है, लेकिन केस एक होता था. केस एक होता था, उस पर स्टिकर जो लगा होता था, अंदर स्टिकर होता था उसका, वो अलग होता था. वो लेबल है. लेट्स कॉल इट एज लेबल. केस सबका एक है. केस हर एक के लिए अलग अलग नहीं बनाते आप. केस सबका एक ही बनाते हैं. तो फिर ये क्या हुआ? हर एक अलग अलग है लेकिन हर यूनिट का तो नहीं है. तो फिर in placing them by hand into protective plastic cases prior to shipping. जी क्लास. बैच या फिर और क्या हो सकता है? सिर्फ बैच ही का ऑप्शन आपके पास, यूनिट का ऑप्शन तो नहीं रहा ना फिर. तो बैच का ही ऑप्शन. ठीक है. प्रिपरेशन ऑफ द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर द ऑर्डर. शिपिंग डॉक्यूमेंट for the order. Sustaining the organization. Sustaining customer. Okay. Preparation of periodic maintenance of equipment. Organization. Okay. Okay. Lighting and heating of the company's production facility. Lighting and heating the company's production facility. Organization sustaining इसके अलावा क्या हो सकता है? ये तो है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, या ये हो सकता है या ये हो सकता है. ठीक है. अच्छा, प्रोडक्ट लेवल. प्रोडक्ट लेवल पे हम लोगों ने क्या बात की थी? What was the definition? Product को attribute करो ना. ये प्रोडक्ट को एट्रीब्यूट कर रहा है? नहीं ना. So organization sustaining. ठीक है. आसान काम इस तरह के जब नहीं समझ आती ना, तो जो नहीं है उनको हटा दें, जो बाकी बच जाएगा उसमें डिसाइड. बाकी हमेशा आपके पास यही बचेगा या 2 बचे, इससे ज्यादा नहीं बचेगा. ठीक. ओके. प्रिपरेशन ऑफ quarterly financial reports. Okay. So 7-6 is done. Let's move on to 7-12. 7-12. 8, 9, 10, 11, 12. Okay. 7-12 activity measures. Now that's a simple one. कि आपको बहुत सारे एक्टिविटी है, लेवल ऑफ एक्टिविटी है, एंड एग्जांपल्स ऑफ एक्टिविटी मेजर्स. इसका एक्टिविटी मेजर क्या हो सकता है आपने बताना है. ओके. वेरियस एक्टिविटीज एट मेन कॉर्पोरेशन, a manufacturing company are listed below. Each activity has been classified as a unit level, batch level, product level, or customer level activity. Okay. Direct labor workers assemble a product. That is a unit level of activity. Examples of activity measure आपने देने हैं. क्या रिक्वायर्ड क्या है? कंप्लीट द टेबल बाय प्रोवाइडिंग एग्जांपल ऑफ एन एक्टिविटी मेजर फॉर ईच एक्टिविटी. इसके लिए एक्टिविटी मेजर क्या होगा? डायरेक्ट लेबर वर्कर्स assemble a product. लेबरर्स, डायरेक्ट लेबरर्स, डायरेक्ट लेबरर्स. और पॉसिबल क्या हो सकता है? पर यूनिट assembling a product. पर यूनिट होता है. देखिए, लेवल ऑफ एक्टिविटी यूनिट वाइज, लेवल ऑफ एक्टिविटी यूनिट वाइज है. तो लेवल ऑफ एक्टिविटी यूनिट वाइज है. एक एक यूनिट पे कितना टाइम लग रहा है? लेबर पर यूनिट. लेबर आवर्स और यूनिट कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा? लेबर. एक वर्कर है मेरा या मेरे वर्कर्स हैं जो कि इस शेयर के हर अलग अलग पोर्शन को एक साथ करता है. इसमें बहुत सारे पोर्शन है. वुड किसी और ने बनाया, स्टील किसी और ने बनाया, ये किसी और ने बनाया. वो इन सबको एक साथ करता है. ठीक है. तो वो इसके लिए, इसको देखने के लिए क्या अच्छा तरीका ये है कि ये देखूं कितने घंटे काम किया उसने,
या कितने यूनिट्स बनाए उसने? एक बंदा तेज काम करेगा, दूसरा स्लो करेगा, मशीन वो लेबर और सब पे सब हो। तो फिर व्हाट इज द गुड यूनिट वाइज यूनिट वाइज ओके। और यहाँ पे भी यूनिट लेवल एक्टिविटी है तो फिर यूनिट शायद ज्यादा अच्छा होगा। ठीक, ओके नेक्स्ट, प्रोडक्ट्स आर डिजाइन्ड बाय इंजीनियर्स। प्रोडक्ट्स आर डिजाइन्ड बाय इंजीनियर्स। आप बताएं। प्रोडक्ट डिजाइन के लिए हम लोग क्या करते थे, कितना होता था प्रोडक्ट डिजाइन बी वाइज? नंबर ऑफ डिजाइन। ठीक है, ये तो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था, आसान है ना, कि इंजीनियर्स ने कितने डिजाइन बनाए बस उसके मुताबिक उसको पैसे दें, या उसके मुताबिक हमारी रिसोर्सेज यूज ऑफ नंबर ऑफ डिजाइन, नंबर ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन। ओके, इक्विपमेंट इज सेट अप। अब ये बैच के लिए, एक बैच के लिए एक बार इक्विपमेंट लगाएंगे, वो बैच खत्म हो जाता है, दूसरे बैच के लिए दूसरा इक्विपमेंट। बैच के अंदर क्या होता है? यूनिट्स। कोई बैच बड़ा होता है, कोई बैच कम होगा। ठीक, अब अगर इक्विपमेंट आप उसके लिए तैयार करते हैं तो वो किस चीज पे, वो जो कॉस्ट इनकर होती है उस इक्विपमेंट को तैयार करने वो किस चीज पे डिपेंड करती है? यूनिट्स पे ना। जितने ज्यादा यूनिट्स होंगे उतना ज्यादा बैच होगा, या नहीं? जितनी यूनिट यूनिट ज्यादा की बैच ज्यादा। यस, क्योंकि कयो यूनिट लपारम बैच जोड़े, कपिंजम यूनिट लपारम बैच जोड़े, पूरा यूनिट equipment you will have to set up. Okay, good. There is another batch for 1000 units. Will you take the same time to set up the equipment? No. ज्यादा टाइम होगा लेकिन how? यूनिट्स ज्यादा हो गए। तो यूनिट ज्यादा हो गए, लेकिन आपने इक्विपमेंट को सेट करना है ना। ठीक है, सेट इट प्रॉपर्ली, उसकी सेटिंग चेंज कर दें, उसको ये कर दें, उसको वो कर दें, उसको ग्रीस दे दें, उसको सब कुछ कर दें कि वो बस सेट हो जाए, ताकि इस बैच को बना सकें। तो अगर एक यूनिट 5 बैच का है और एक यूनिट 500 बैच यूनिट्स का, सॉरी एक बैच 500 यूनिट्स का है, एक 5 यूनिट्स का है, तो क्या दोनों के लिए इक्विपमेंट सेट करने में उतना ही, मतलब उसकी कॉस्ट ज्यादा या कम किस बात से होगी? इक्विपमेंट सेट करने की। हाँ, इक्विपमेंट सेट करने की कॉस्ट। इक्विपमेंट इज सेट अप एंड इट्स अ बैच लेवल एक्टिविटी। देखिए वो आपको बता रहा है कि बैच लेवल एक्टिविटी है, यूनिट लेवल पे एक्टिविटी नहीं है ये बैच लेवल पे है। यानी एक बैच गुजर गया, दूसरा बैच इसके ऊपर फोकस है। तो अगर बैचेस के ऊपर फोकस है तो फिर इसका मतलब ये है कि हर बैच डिसाइड करेगा कि कितना कॉस्ट इनकर होता है या कितना रिसोर्सेज यूज आउट होते हैं, कितने ओवरहेड रिसोर्सेज यूज आउट होते हैं। तो क्या इसके लिए फिर मैं कौन सा एक्टिविटी मेजर रखूं? नंबर ऑफ यूनिट्स रखूं या नंबर ऑफ बैचेस रखूं या नंबर ऑफ सेटअप्स रखूं? अगर आपको याद हो क्वेश्चन में नंबर ऑफ सेटअप्स भी था। सेटअप्स ज्यादा अच्छा है ना, कि कितनी बार सेटअप आप करते हैं, कितनी बार ये सेटअप आप बनाते हैं, यही ज्यादा अच्छा होगा ना, कि कितनी बार आप सेटअप्स बनाते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स तो देखिए किसी में ज्यादा है किसी में कम है, तो बैच तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। बैच हर एक का अलग अलग बैच होगा, तो नंबर ऑफ यूनिट्स तो डिसाइड नहीं करता है। फिर बैच लेवल एक्टिविटी है, तो फिर इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ सेटअप्स डिसाइड करेगा। मशीन्स आर यूज्ड टू शेप एंड कट मटेरियल एंड दिस इज अ यूनिट लेवल एक्टिविटी। Machine hours, simple. Okay. Next, monthly bills are sent out to regular customers. Number of customers. ठीक है. It's a customer level activity. Now you are thinking कि activity को देखें कि किस लेवल की है, उसके मुताबिक उसका activity measure decide करें. बस. तो इसलिए कह रहा हूँ जितने ज़्यादा questions आप करेंगे उतना आपका दिमाग खुलता जाएगा, उतना आप अच्छी तरीके से एग्जाम कर सकेंगे. Okay. Let's move on. Materials are moved from the receiving dock to production lines, and it's a batch level activity. मटेरियल्स आर रिसीव्ड फ्रॉम द रिसीविंग डॉक, मटेरियल्स आते हैं बार गेट के ऊपर, वहां से उठाकर यहां पर लेकर आता हूं फॉर प्रोडक्शन लाइन, प्रोडक्शन के लिए लेकर आता हूं, प्रोडक्शन के लिए, एंड इट्स अ बैच लेवल एक्टिविटी। जितने टाइम्स शिपिंग करें ये हो सकता है, जितने ले जाए शिपिंग नहीं है ना, ऐसा प्रोडक्शन के लिए लेकर आ रहा हूं, उसको मैं प्रोडक्शन के लिए लेकर आ रहा हूं। यानी आप ये समझे कि IMS मेथड से हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मटेरियल आता है गेट के ऊपर आता है और वो वहां पर रख देते हैं। ठीक है,
मटेरियल वहां पे रख देते हैं। मुझे चाहिए मटेरियल यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए, ये प्रोडक्शन की जगह है, तो मैं क्या करता हूँ, ये प्रोडक्शन लाइन है, यहाँ पे प्रोडक्शन लाइन है, मशीन बड़ी सी लगी हुई है, उसमें डिफरेंट स्टेप्स है। जब भी मुझे चाहिए मैं जाता हूँ एक बैच के लिए, जब मुझे चाहिए एक बैच खत्म हो जाए अगला बैच शुरू करना है, मैं कहता हूँ जाओ यार वहां से जाके मटेरियल उठा के ले आओ गेट से। इसके ऊपर रिसोर्सेज लगते हैं कि वहां से जाके मटेरियल यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। रिसोर्सेज लगते हैं ना, इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस लगती हैं, और जो गाड़ी लेकर आती है लोडिंग अनलोडिंग ब्ला 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 जो भी आपने करनी है, ठीक है, मजदूर हैं, फिर ये ऊपर आता है लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट की इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आ गई, बहुत सारी चीजें आ गई। आप बताएं ये सारी कॉस्ट हर बैच के लिए अलग अलग है, तो इसके लिए कौन सा एक्टिविटी मेजर अच्छा है? लेबर सर मशीनर्स। लेकिन देखें इसमें खाली लेबर आवर्स तो नहीं है, थोड़ा सा जरा सोचिए ना, खाली लेबर आवर्स पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, किस पे डिपेंड कर रहा है? बैच लेवल है, हर बैचेस के लिए अगर दो प्रोडक्ट का भी बैच है तो उसके लिए यूनिट लेकर आना पड़ेगा अलग, वो खत्म करूंगा फिर अगले बैच के लिए फिर दोबारा जाऊंगा, वो 5000 यूनिट का बैच, उसके लिए 5000 लेकर आऊंगा। Shipment is to the customer. The customer ನೋಡಮ್ಮ, the production line ನೋಡಮ್ಮ, production line. जी क्लास इतना समझा दिए। देखिए look at this again. Is it organization sustaining? Sir, number of which? Organization sustaining? No. Customer? No. Batch? It's a batch level. इधर रख दें. Unit? नहीं. Production? नहीं. Batch level पे क्या क्या चीजें हो सकती है? बैच लेवल पे और क्या हो सकता है? बैच लेवल पे कौन सा ऐसा एक्टिविटी है जो कि बैचेस को की कॉस्ट को ज्यादा या कम करता है? क्वांटिटी ऑफ व्हाट? ऑफ द मटेरियल मूव, तो उसको क्या बोलूंगा? व्हाट विल आई कॉल इट? व्हाट इज दैट एक्टिविटी? यूनिट प्रोडक्शन। नंबर ऑफ यूनिट्स व्हाट? प्रोड्यूस्ड? नंबर ऑफ यूनिट्स मूव? ट्रांसपोर्ट। लेकिन जरूरी तो अच्छा हाँ ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन अब बाहर की ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं है ना, मुझे नहीं पता कि क्या ये वाकई सब कुछ मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ एक गाड़ी के ऊपर, क्या पता मैंने एक रेडर रखा हो उसके ऊपर लेकर आ रहा हूँ, पॉसिबल। शिप तो होगा ठीक है, लेकिन किस चीज की बेसिस पे करूंगा? अगर वो ज्यादा होगा तो ये कॉस्ट ज्यादा होगी, वो कम होगा तो ये कॉस्ट कम हो जाएगी सर। बैचेस की प्रोडक्शन पे सर। बैचेस की प्रोडक्शन पे क्या प्रोडक्शन की चीज? सर वो नंबर ऑफ टाइम्स मूवमेंट। नंबर ऑफ टाइम्स जो आप जा रहे हैं, तो वो क्या उसको मैं क्या बोलूं यार? कोई अच्छा एक्टिविटी मेजर देखें उसका। सर कैरेज इनवर्ड्स। देखिए इनवर्ड सलमान इज समथिंग जो मेरी फैक्ट्री तक लेकर आता है, वो इनवर्ड है। फैक्ट्री के अंदर जो है इनवर्ड कैरेज नहीं है, इनवर्ड कैरेज खत्म है। वो इनवर्ड कैरेज जो मेरे सप्लायर से उठा कर लेकर आता है, ये मैं कहां से लेकर आ रहा हूं? सीविंग लॉक ट्रांसफर मटेरियल ट्रांसफर। तो उसको किस क्या बोलूं यार? कोई अच्छा सा वर्ड देखे, इतने हम अच्छे वर्ड्स पढ़ते हैं इधर, कोई एक वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा। फैक्ट्री के अंदर भी सर ट्रांसपोर्ट की है। हाँ हो सकती है, तो उसको मैं किस चीज से मेजर करूं? किस चीज से? लेकिन उस ट्रांसपोर्ट को क्या बोलूंगा? वो कहता है ट्रांसपोर्ट इन उसका मतलब नहीं। नंबर ऑफ मूवमेंट्स, तो नंबर ऑफ मूवमेंट्स कोई वर्ड है, कोई टर्म है? लेट्स कम अप विद समथिंग टेक्निकल। क्या चीज है? नहीं फिनिश नहीं है, मैं लेकर आ रहा हूं। इन्वेंटरी तो है, बिल्कुल इन्वेंटरी है। सो व्हाट? इन्वेंटरी व्हाट? नंबर ऑफ टर्नओवर। ना वर्क इन प्रोसेस में भी स्टार्ट होगा जब यहाँ पे आ जाएगा। नंबर ऑफ देखिए वो उसने बंद ही कर दिया, वो कह रहा है बहुत देर तक आपने इस पे काम नहीं किया, माउस नहीं हिलाया, बस गिव अप। मटेरियल रिसीविंग खाली मूवमेंट मटेरियल जब आप लोग मूव करेंगे, ठीक है, तो किसी न किसी चीज पे मूव करेंगे ना, और मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा होगा कि मटेरियल क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इट वुड आइदर बी, शायद हो सकता है अगर मटेरियल इस किस्म का हो तो उसका शायद वेट, या शायद नहीं कॉस्ट पे हम नहीं करते, कॉस्ट पे हम कभी नहीं करते, ठीक है। लेकिन वो किस चीज की ट्रांसपोर्टेशन, फिर वही बात आ गई, तो ट्रांसपोर्टेशन को आपने एक्सप्लेन करना है कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है। हमारे पास सिर्फ दो किस्म का कैरेज है, इन आउट, और ना ये इन है ना आउट, ये एक भी चीज ये इसके अंदर है। तो या तो मैं ओके पेड अटेंशन क्लास, या तो मैं मटेरियल की अमाउंट के ऊपर करूं,
ठीक है, या मैं यूनिट्स के ऊपर करूं, यानी अगर केजी में मटेरियल है, अगर मेरा जो भी मटेरियल है मटेरियल अगर वो केजी में है तो मैं केजीज या टन्स के ऊपर करूं कि कितना टन्स मूव करता है, जितना टन्स मूव करता है उतनी कॉस्ट ज्यादा होती है, ठीक है, उतने ज्यादा कैरी करूंगा, या उतना बड़ा ट्रक में डालूंगा। अगर थोड़ी चीज होगी तो खुद उठा के ले आएगा, अगर ज्यादा चीज होगी तो लेट से वो लिफ्ट्स हैं उसमें ले आएगा। अगर बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत ज्यादा है हर बैच, तो फिर शायद एक ट्रक, जो मेरा एक ट्रक है वो उसमें डाल के लेकर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो इस बात पे डिपेंड कर रहा होगा कि मेरा जो मटेरियल है उसका नेचर क्या है, या तो उसका कोई वेट है, ठीक है, या उसकी मूवमेंट का, अगर मूवमेंट, लेकिन मूवमेंट का जो स्पेस है वो तो सेम है सबका, किलोमीटर कितने किलोमीटर दूर है या कितने मीटर दूर है मुझसे गेट, तो वो तो सेम है। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे मटेरियल पे डिपेंड कर रहा होगा कि वो क्या है, या तो उसके नंबर पे, या उसके वेट पे, या उसके वॉल्यूम पे। सर ये प्रोडक्शन पे नहीं कर सकते? प्रोडक्शन पे नंबर ऑफ प्रोडक्शन, हाँ, हर बैच के अंदर डिफरेंट प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन पे भी कर सकते हैं। amount of inventory loaded. ऑलरेडी अमाउंट्स पे नहीं करते होते ज्यादा, अमाउंट्स पे हम लोग इस ड्राइवर्स अमाउंट्स पे, लेकिन डायरेक्ट लेबर आर्स ड्राइवर है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ड्राइवर नहीं, तो अमाउंट्स पे नहीं होना नेट चाहिए। पे ज्यादा करना चाहिए। हाँ, उसके 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 किसी और एस्पेक्ट में होना चाहिए जो उसके अमाउंट को कंट्रोल कर रहा हो, यानी अगर वो एस्पेक्ट ज्यादा हो जाए तो अमाउंट ज्यादा, अगर वो एस्पेक्ट कम हो जाए तो अमाउंट कम, उस चीज पे। तो मेरे हिसाब से वेट वॉल्यूम ज्यादा है। ओके, ऑल कंप्लीट यूनिट्स आर इंस्पेक्टेड फॉर डिफेक्ट्स। सर तो ये क्या इसका आपको बताया ना, या तो उसके वॉल्यूम पे या बैचेस के ऊपर, कि उसके प्रोडक्शन कितनी है, या तो उसके ऊपर और या उसके वॉल्यूम पर, वॉल्यूम या वेट। सो आइदर इट विल बी वॉल्यूम, वेट और बैच कितना बड़ा है, तो उसको किस तरह बोलेंगे? Size of batch? हाँ, शायद साइज ऑफ बैच, Number of rows. नंबर ऑफ यूनिट्स, इस तरह नंबर ऑफ यूनिट्स, साइज ऑफ बैच में यूनिट्स होते हैं ना, तो ये ज्यादा छोटा नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके, ऑल कंप्लीट यूनिट्स आर इंस्पेक्टेड फॉर डिफेक्ट्स। Inspection hours. इंस्पेक्शन आवर्स, डिफेक्टिव यूनिट्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, यानी इंस्पेक्शन आवर्स, दोनों ही सही, दोनों सही, गुड इनफ, ठीक है। ओके, क्लियर, डन। 714, 714, लेट्स मूव ऑन टू 714, कैलकुलेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग डेटा। ओके, और करना क्या है, ये तो मैंने पिछली क्लास में भी किया हुआ है। दिस इज एन इजी वन, पता नहीं इसमें क्यों उनको भी मसला है, आपको भी मसला है। इसका मतलब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और अच्छे क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो एग्जैक्टली। ओके, लेट्स मूव ऑन। बाय द वे, ये पेपर जब मैंने बनाया था, इसका पेपर जब मैं बनाया था एक बार, तो वो मैं आई हैड जस्ट बिफोर द एग्जाम मैंने जब ही क्रेडिट आवर्स अपने कंप्लीट किया, एंड आई वेंट टू हुंजा फॉर विद माय फैमिली, एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप्स ऑफ माय होल लाइफ। यानी अल्लाह का शुक्र है, आई बीन टू सो मेनी कंट्रीज, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे था वो वाकई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और मेरे जितने भी मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, ठीक है, दे एंजॉयड, और उन्होंने कहा कि अब तक हमारा भी ये सबसे लाइफ का सबसे मेमोरेबल ट्रिप है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सेफ्टी ओवर देयर, बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज ओवर देयर, बिकॉज ऑफ द ब्यूटी ओवर देयर, बिकॉज ऑफ द पीपल ओवर देयर, दे आर सो हेल्पफुल, एंड इट वाज ऑल सो गुड, बिकॉज ऑफ द फूड ओवर देयर, फूड इज सो गुड, और सब कुछ। तो जब मैं वापस आया तो मेरे ख्याल में शायद संडे को वापस आया, मंडे को पेपर था, इस तरह कुछ चक्कर था। मंडे को सुबह वापस आया, और मंडे को दोपहर को पेपर था, और सुबह मैं पहुंचा था 4 बजे, ठीक है। पूरी ड्राइव की थी मैंने, कोई 24 आवर्स से ज़्यादा मैंने ड्राइव की थी। वी लेफ्ट एट 9 in the morning from Hunza, and I drove all the way to Peshawar in one stretch, then हम रुकते, और हम सुबह पहुंचे कोई 4-5 बजे, और मैं दरम्यान में कोई 1-2 घंटे सोया गाड़ी में, ठीक है, उसके अलावा कहीं रेस्ट नहीं। सो जब मैं आया, मैं सोया थोड़ी देर, इनको मैंने कहा मैं थोड़ी देर सो रहा हूँ, उसके बाद उठूंगा और फिर आपको एग्जाम दूंगा। तो मैं सोया, फिर मैं उठा, फिर मैंने एग्जाम पेपर बनाया, तो मेरे दिमाग में सारा हुंजा। तो ये सारा पेपर जो था ना, मुझे पेपर था पर्टिकुलरली ये हुंजा के ऊपर था, ये हुंजा के ऊपर था। Whatever I saw over there, whatever I experienced over there, wherever I went over there,
किसी रेस्टोरेंट में गया, किसी होटल में गया, किसी जगह पे गया, उसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस बनाए, ऑल दैट डेटा, ठीक है। और फिर उसके नीचे मैंने लिख भी दिया कि दिस पेपर इज डेडिकेटेड टू माय टूर टू हुंजा, और उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें हुंजा की डिफरेंट जगहों का मैंने बताया था क्वेश्चंस के अंदर, और उसके उन चीज़ों को बताया था। अगर वो पेपर एज इट इज तो आपको नहीं आएगा ऑब्वियसली, उसमें से कुछ चीज़ जो आपने पढ़ी होगी वो आएगा, जो आपने नहीं पढ़ी होगी वो नहीं आएगा, और उसको भी मैं मॉडिफाई करता हूँ फिर, लेकिन वो स्टोरी वुड रिमेन द सेम। सो एक्सपेक्ट अ ट्रिप टू हुंजा इन योर मिड टर्म एग्जाम, ठीक है, उसके अंदर हुंजा का ट्रिप होगा बिल्कुल, ऑल ईच एंड एवरीथिंग रियलिटी, फिगर्स मेरे अपने बनाए हुए होंगे, बाकी सब कुछ रियलिटी, सब कुछ रियल, गुजारा आपने करना है, गुजारा आपने करना है। अगर आप ब्लैंक पेपर देंगे तो ब्लैंक, इस बार who failed? 2 students failed, sorry, this time around in the whole batch 2 students failed in FRM. One of them was a repeater and he was not attending the classes, he did not attend classes, और फिर उसका obviously examination, और the other one was a regular student, I don't know, he actually messed up the midterm exam, 9 marks, so he failed the final exam. Okay, तो midterm अच्छा करना है तो आगे final अच्छा होगा, सही है, और assignments नहीं छोड़ते, assignments presentations नहीं छोड़ते, no way. Okay, let's move. Enhanced Lakeside is a popular restaurant located on Lake Washington in Seattle. So this is how I actually made questions. I would first tell about the particular organization कि वो क्या है, क्या करती है, और किस जगह पर है, और वो सब हुंजा की चीजें, और फिर उसके बाद उसमें होता क्या है, फिर उसके बाद डेटा, obviously this data was all mine, मतलब वो था ना अपना खुद बनाया हुआ डेटा, और फिर उसके बाद questions. Okay, so the owner of the restaurant has been trying to better understand cost at the restaurant and has hired a student intern to conduct an activity-based costing study. So we already have an organization where we have the data, but let's say आप में से एक बंदे को कहते हैं आओ यार जरा आके ABC करते हो, आगे चलते। The intern in consultation with the owner identified 3 major activities. So now you have 3 major activities. हमने क्या पढ़ा? How many levels of activities? 5. But in a particular organization you can identify 3, 4, whatever. और अक्सर आप other भी एक लिख देते हैं जो हमारे क्वेश्चन में था, ठीक है? Okay. 3 level of activities. The intern in consultation with the owner, okay, and then completed the first stage allocation. What is the first stage allocation? Percentage वाला, वो जो percentages given होंगी और आप हर cost pool में उसके मुताबिक cost assign करेंगे और फिर उसको total करेंगे। आगे, of cost to the activity cost pools, the results appear below. इसका मतलब इसने already यहाँ पर वो percentage वाला काम कर दिया। आपके एग्जाम में percentage वाला काम भी आपको करना है, फिर ये सेकंड काम भी करना है, फिर वो थर्ड सब करना है, ठीक है, सब करना है, फर्स्ट स्टेज एलोकेशन से स्टार्ट करना है। चलिए जी, एक्टिविटी कॉस्ट में सर्विंग अ पार्टी ऑफ डाइनर्स, सर्विंग अ डाइनर, सर्विंग ड्रिंक्स, सो 3 थिंग्स, सर्विंग अ पार्टी ऑफ डाइनर्स, सर्विंग अ डाइनर और सर्विंग ड्रिंक्स, 3 किस्म की चीजें। इसके एक्टिविटी बजट क्या है? पार्टी ऑफ डाइनर्स, ठीक है, पार्टी कर रहे हैं, सो नंबर ऑफ पार्टीज, कितनी पार्टीज, ओके, सर्विंग अ डाइनर, एक बंदा है, सो नंबर ऑफ डाइनर्स, कितने लोगों को आपने सर्व, okay, serving drinks, आप उनको drinks दे रहे हैं, number of drinks of it, ठीक, clear? Total cost 33,000, 138,000, 24,000. So this is the cost of the cost pools, and this is the total activity. सबकी activity भी given है आपको, okay? So the first thing you need to do is the above costs include all the costs of the restaurant except for organization sustaining cost. ये भी तो चल गया, नीचे आ गया। Yes, sir. Yes, sir. Okay, the above costs include all of the cost of the restaurant. इसको थोड़ा सा ये क्या है? 6,000% हमने इतना तो नहीं कहा था यार। Okay, the above costs include all of the costs of the restaurant except for organization sustaining costs such as rent, property taxes, and top management salaries. So that is not there. जो fifth वाला है वो नहीं है। आगे चलें। Some costs such as the cost of cleaning the linens that cover the restaurant's tables vary with the number of parties served. Other costs such as washing plates and glasses depend on the number of diners served or the number of drinks served. कुछ cost depend करती है number of parties, कुछ cost depend करती है number of diners served.
ठीक है, या नंबर ऑफ ड्रिंक्स, और ये कौन सी कॉस्ट है, ये अदर कोई कॉस्ट। आगे जाए, prior to the activity based costing study, the owner knew very little about the cost of the restaurant. She knew that the total cost of the month, including organization sustaining cost, was 240,000. सब कॉस्ट मिला के कितनी है, 240, and that 15,000 diners had been served, और total diners कितने थे, 15,000. Therefore the average cost per diner was, average cost आप निकाल सकते हैं, कितनी आएगी, चेक करें, यही आएगी, यही आ रही है, इसका मतलब इसने सही है। अब आगे चले, according to the activity based costing system, what is the total cost of serving each of the following parties of diners? A party of 4 diners who order 3 drinks in total. Okay, 4 diners who ordered 3 drinks in total. आप क्या करोगे, इसको कैसे लेके जाओ, पहले तो पर इसको ऊपर कैसे लेके जाओ, पहले ये बताएं, उसके बाद बात करेंगे। सर वो ऊपर हैंड वाला ऑप्शन बंद कर दे, हैंड वाला ऑप्शन बंद कर दो, ये ले बंद कर दिया, फिर भी आ रहा है, तो ऐसे करो, इसको कर्सर करके और ऊपर कर, काम करेगा। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 33 plus 138 plus 24, that makes a total of 1 what 195,000, और इसने क्या कहा, टोटल कॉस्ट कितनी है, 240, तो 195 ये है और 240 ये है, so that means there is a difference of 45, that 45 must be other cost, other cost, ये भी पता चल गया। आगे चलो, अब आपने करना क्या है कि आपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करनी है और इसको देखकर इसके लिए फाइंड आउट करना है, लेकिन इससे पहले जरूरी है कि हम लोग इस डेटा के साथ क्या करें, रेट्स फाइंड आउट, एक्टिविटी रेट्स, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, divided by cost divided by activity, so 33,000 divided by 6,000 would equal 5.5 per party, ठीक है, एक पार्टी के ऊपर 5.5 कॉस्ट आती है। आगे चल, 138,000 divided by 15,000 9.2 per diner, okay, number of drinks 24,000 divided by 10,000 2.4 per drink served, ठीक है, ये हो गया। अब आएंगे, अब वो कह रहा है आपने फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ सर्विंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज ऑफ डाइनर्स, ये पार्टीज हैं आपके पास, एक पार्टी ये होगी, एक पार्टी ये होगी, एक पार्टी, पहली पार्टी थी पार्टी ऑफ 4 diners who ordered 3 drinks in total, इसकी कॉस्ट कितनी है, a party of 4 diners who ordered 3 drinks in total, a party का क्या मतलब, एक पार्टी की कॉस्ट कितनी है, 5.5, एक तो ये हो गया 5.5 प्लस 4 diners, पर diner कॉस्ट कितनी है, 9.2, so 9.2 multiplied by 4 plus who ordered 3 drinks in total, per drink cost कितनी है, 2.4, so 2.4 times जी 49.50 इसकी कॉस्ट, इस पार्टी, क्लियर है, आसान है, मुश्किल तो नहीं है। नेक्स्ट, a party of 2 diners who do not order any drinks, a party 5, 2 diners 9.2 multiplied by 2, okay, who do not order any drinks, कोई drink नहीं, so 2.4 multiplied by 0, 23.9, a party of 1 diner who orders 2 drinks, a party 1 diner 2 drinks, 19.5 जी, ये क्लियर है सर, इज दिस क्लियर टू ऑल, Yes. आसान था क्लास, ओके, लेट्स मूव ऑन। Convert the total cost you computed in 1 hour
इसमें जो आपने टोटल कॉस्ट की है टू कॉस्ट पर डाइनर, इसको कन्वर्ट कर दें कॉस्ट पर डाइनर के अंदर। नंबर ऑफ पीपल पे डिवाइड कर लेते हैं कितने डाइनर्स। ठीक है, टोटल कॉस्ट, इसमें टोटल कॉस्ट कितनी है? एक में 49 है, दूसरे में 23 एंड 19। ओके, इसमें जितने कॉस्ट पर डाइनर, इन अदर वर्ड्स व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट पर डाइनर फॉर सर्विंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज। पहली पार्टी में 4 डाइनर्स थे, पहली पार्टी में 4 डाइनर्स थे और पहली पार्टी की कॉस्ट कितनी है? 49.5। तो अगर पहली पार्टी की कॉस्ट 49.5 है और इसके अंदर 4 डाइनर्स हैं तो पर डाइनर कितना होगा? 12.375 12.375। ये सही लिखा है हमने? सही लिखा है? यस सर। सही लिखा है? सही लिखा है? जी सही लिखा है? टेक्निकल मसला है, 12.35 ये टेक्निकल बहुत बड़ा मसला है। ये 12.375 क्या चीज? कॉस्ट है। कॉस्ट किस चीज में होती है? किस चीज में? इसका वो यूनिट क्या है? डॉलर्स। डॉलर्स कभी 375 हो सकता है, 0.375 सेंट्स होता है। कैन सेंट्स भी 375 सेंट्स, आइदर वुड बी 37 सेंट्स और वुड बी 38 सेंट्स। तो जब भी आपके पास अमाउंट्स हो, चाहे रुपीस हो चाहे डॉलर्स हो, व्हाटएवर अमाउंट्स, उनको हमेशा 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना। सो द आंसर इज 12.38। लेट्स मेक इट 38। ठीक है, इस तरह का भी नहीं लिखना मेरे एग्जाम में, अदरवाइज मुझे ज्यादा हो जाए तो पूरा क्वेश्चन कर। सर ये 49.4 डिवाइड बाय 4 को इसका आंसर 12.35 आता है सर। तो ये किसने बोला है फिर? अली ने बोला है, ये साइंटिफिक है वो। ना गलत है। गलत कैलकुलेटर में क्या है? वो नॉन साइंटिफिक है क्या? 375 ये शब्दान है। मोबाइल का सही मोबाइल है वो है। हाँ, डिवाइड बाय come on give me the answer quickly। 9.40 ये 50 है। सर 4 है यार, सर 4 4 लिखा हुआ है। ऊपर क्या लिखे हैं? सर 49.4 नहीं लिखा। नंबर ऐसे लिखे हैं। बराबर है सर। Okay, sorry, my mistake, sorry, don't fight, my mistake। So this is 49.5 divided by 4 which is equal to 12.5 which is equal to 12.38 per line। Okay, clear class? Clear? Easy? Let's move on, jaldi class का finish है। Party of 2 diners who do not order any drinks, 2 diners, so the cost was 23.9 in 2 diners, so per diner the cost is 11.925 per diner। Okay, a party of 1 diner who orders 2 drinks, so 19.5 divided by 1 equals 19.5 per diner। आसान है ना? तो फिर इतना आसान क्वेश्चन मुझसे क्यों करोगे? थर्ड पार्ट। Third, अब आते हैं third part। Why do the cost per diner for the 3 different parties ये differ? ये different क्यों है? Differ from each other, एक दूसरे से क्यों different है? ड्राइवर्स डिफरेंट एक्टिविटीज Activity drivers different है? कैसे drivers different? सबको divide by number of persons किया है, diners, तो फिर क्यों different? ऊपर से सर सर नंबर ऑफ डाइनर्स डिफरेंट है ना, उसका अलग से खर्चा है एक्टिविटी। बोले जी। नंबर ऑफ डाइनर्स ज़्यादा है, बाद में कुछ में कम है, तो उसका अलग से खर्चा होता है ना, अलग एक्टिविटी है जो जिसमें ज़्यादा होगा तो सर एक्टिविटी ज़्यादा है। एक्टिविटी की ज़्यादा है, किसी में एक्टिविटी ज़्यादा है, किसी में एक्टिविटी कम है, और हर एक्टिविटी का अलग रेट है जिसके मुताबिक आपको टोटल कॉस्ट आ रही है, और फिर हर एक के नंबर ऑफ डाइनर्स अलग है जिसकी वजह से अलग आंसर आ रहा है। इस वजह से ये तीनों आपस में डिफरेंट। ठीक है, क्लियर? इसको इंग्लिश में लिख देंगे क्या बोल दूं? लिख देंगे? सबको इंग्लिश आती होगी? आती है, हो जाएगा।
हो जाएगा yes or no? Yes, sir. Yes. Okay, let's move on. Now, different from each other and from the overall average cost of 16 per annum. उससे क्यों different? अदर कॉस्ट में जो कम इससे क्यों different? सर इसमें अदर कॉस्ट सर अदर कॉस्ट है इसमें अदर कॉस्ट है इसमें अगर आपको याद हो तो ये कॉस्ट है यस और ये कॉस्ट में वो वाली कॉस्ट भी थी जो कि इस एक्टिविटीज के अलावा तीन एक्टिविटीज जो हमने ऊपर देखी इसके अलावा थी क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है द अबव कॉस्ट इंक्लूड ऑल ऑफ द कॉस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट एक्सेप्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनिंग कॉस्ट ठीक है तो जो ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनिंग कॉस्ट है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है इसमें तो है लेकिन इसमें जो कैलकुलेशन हमने की है उसमें इसका ड्राइव ना इसका कॉस्ट पूल है ना इसका कॉस्ट ड्राइवर है इस वजह से ये इससे different। और फिर इसके बाद हमने अच्छा चलिए वो बात क्लियर हो गया यस ये क्वेश्चन भी क्लियर आगे जाएं 14 डन 16 एंड 18 लेट्स मूव ऑन टू 16 आज तो सारा दिन इसी में लगे सर एक छोटा सा ब्रेक Yes, sir. ओके लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 5 minutes start Yes. okay start 716 so now comparing traditional activity based product margins between the two systems high tech manufacturing corporation makes two types of industrial component parts the B300 and the T500 an absorption costing income statement for the most recent period is shown absorption costing income statement so this is an income statement under absorption costing sales cost of goods sold gross margin salary and admin expenses net operating loss 2,100,000 minus 1,600,000 500,000 this is 550 so that means a loss of clear यहाँ पे आसान था नीचे देखते हैं नीचे क्या है High-Tech produced and sold 70,000 units of B300 at a price of 20 per unit and 17,500 units of T500 at a price of 40 per unit. So this is the sales Yes. data. Okay. Sales में से हमने किस चीज को माइनस करना होता है क्या हमें पता चलता है? CGS को माइनस करना होता है. ओके. तो अगर मैं सेल्स को देखना चाहूँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेल्स एंड लेट्स क्या इस पुराने डेटा को हटा दूँ. ठीक है? वैसे भी आपका ये किसी काम का नहीं है. यस सर Where is the trust? Okay. ये क्यों इधर पड़ी हुई है? Okay. So let's look at the sales first, and then we will calculate other things. Okay, sales. Now we have two products, B300 and T500. यार ये sales को थोड़ा ऊपर लिख देंगे ताकि जगह में बस बच जाए. ठीक है? Sales को यहाँ. Okay. So now sales. B300 की sales आपने कितनी की है? 70,000. और कितने के ऊपर? 20 के ऊपर. तो फिर कितनी हो गई आपकी sales? 140,000. 1.4. Okay. So 1,400,000. सही है? चेक कर लेंगे. 20 multiplied by 17,000. Sorry, 70 multiplied by 20 20. यस ठीक है? 700,000 से 70. नहीं सर टोटल इसका 700,000 आता है दूसरे का अच्छा दूसरे. Okay. So पहले वाले का 70,000 multiplied by 20. The next one is 17,500 units of T500 at a price of 40. So 17,500 multiplied by 40. G. 700,000 That means total sales is 2.1 total sales are 2.1 million. 2.1 million and you can cross check it from there. Yes. 2.1 ये भी सही हो गया. आगे चले. The company's traditional cost system allocates manufacturing overhead to products using a plant-wide overhead rate and direct labor dollars as the allocation base. Plant-wide overhead rate. तो manufacturing overhead is 608,000. अगर इसका plant-wide overhead rate निकालें तो इसको divide by क्या करेंगे? 304,000 Direct labor dollars. Hours नहीं dollars. एक्टिव Direct labor के dollars कितने हैं? 304,000. 608,000 divided by 304,000. 608,000. इधर लिख लेता हूँ 608,000 divided by 304,000. So it's 2. Yes, sir. 2 आ गया. 2 पर क्या आ गया? 2 पर what? सर ये अप्लाइड रेट होगा ना
ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का रेट आ गया ना, POHR. और एक ये कितने उसके हिसाब से आ गया, $1 के हिसाब से। सो दिस इज 2 पर डायरेक्ट लेबर, पहले आवर्स होता था अब डॉलर्स है। सो दिस इज 2 पर डायरेक्ट लेबर डॉलर्स। ओके, डायरेक्ट लेबर डॉलर्स यहाँ पे कितने हैं, 200,000। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो मेरे पास ये फिगर आ जाएगा, which would be okay 104 multiplied by 2 208 plus 400 60। सही है, सही जा रहे हैं अब तक? ओके गुड, अब तक सही जा रहे हैं, आगे चलें। The company has created an activity-based costing system to evaluate the profitability of its products. High-tech CDC implementation teams concluded that 50,000 and 100,000 of the company's advertising expenses could be directly traced to be 300 and T500 respectively. ये directly traceable cost, यानी ये भी direct cost हो गई। अब तक आपके पास direct cost कौन सी थी, ये और अब एक और आ गई, जो कौन सी है, advertising expenses। ये भी direct cost आ गई, और ये कितनी है, 50,000 50,000 and 100,000। This is 50,000, 150. this is 100,000, this is 150 150,000। ठीक, 150,000। अब ऊपर वापस जाए, सेलिंग एंड एडमिन में से 550 में से 150 चली गई, बाकी कितनी रह गई, 400। दिमाग में रखिएगा इस फिगर को, अब शायद जरूरत पड़ जाए। आगे चलिए, 100,000 of the company's advertising expense could be directly, okay। The remainder of the selling and admin expenses was organization sustaining in nature। तो वो कितनी हो गई, अभी हमने कैलकुलेट की, कितनी हो गई, कितनी हो गई, 400,000। जो रिमेनिंग है ये हो गई ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनिंग। Okay. The ABC team also distributed the company's manufacturing overhead to 4 activities as shown below, which is this. Oh, it's another thing. Okay. Now, manufacturing overhead, ये सारे, which is equal to 608. ऊपर चेक करें 608. ये भी सही है. Okay. 213,500 machining, setups, product sustaining. Sustaining, na? Product sustaining, other organization sustaining. It is 170,000 in manufacturing overhead. अब यहाँ पर आ जाए activity B300 T500 और total machining 90,000 यहाँ पर लगती है, 62,500 वहाँ पे, setups, product sustaining, other जो कि organization is not applicable। अब करना क्या है हमने, required using exhibit 713 as a guide। exhibit 713 में क्या है, किसने चेक किया, ठीक है, किसी ने एग्जिबिट 730 किसी ने चेक किया, उसमें है क्या, नहीं चेक किया। तो जब वो चेक नहीं करेंगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें देखें जिस तरह उसने लिखा है उस तरीके से यहाँ पे लिख दें। उसमें क्या लिखा होगा अभी से आपको बता देता हूँ, उसमें वही चीज लिखी होगी जो हम लोगों ने स्लाइड्स में की थी जब हम लोग 2 डिफरेंट प्रोडक्ट कॉस्ट को चेक कर रहे थे, ठीक है, अंडर 2 डिफरेंट सिस्टम्स। तो इसमें एग्जैक्टली वही चीज होगी, लेकिन फिर भी एहतियात हम चेक कर लेते हैं, क्या पता कुछ और ना हो। 712 713 इधर कहीं पर होना चाहिए, 713 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, go back 713 this is 714 713 this is 713 yes, ठीक है। उसी तरह डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, प्रोडक्ट मार्जिन, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, ये यहाँ पे लिख देंगे, इसका टोटल निकाल देंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर का अलग किया था, कस्टम कंपस हाउसिंग का अलग किया, याद है, यस, वही काम यहाँ पे भी कर रहा है जो मैंने जिस तरह लिख दिया, मैंने आपके लिए पहले से लिख दिया ताकि आसान है। अब ये हमने लिख दिया, इसमें से सिर्फ ये चीजें बीच में यहाँ पे ऐड सबट्रैक्ट करनी है, डिवाइड डाल, हम सारा डेटा लिख चुके हैं। ओके, वापस आए, आप नीचे आए वापस, where is it? Yeah. Okay, 760. Okay. So पहले वाले में product margins find out करें under the company's traditional costing system. Traditional costing system में ये चीज, ठीक है, एक कॉस्ट ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये 3 कॉस्ट आ गई, ये इसकी सेल्स है, ये इसकी सेल्स है, ये इसकी 3 कॉस्ट है, इन तीनों कॉस्ट को ऐड करें, इसमें से माइनस करें, आपके पास आता है, सिंपल।
ठीक है, अगर जल्दी से करके मुझे फिगर दे सकते हैं तो बता दें। 363,700 स्पेलिंग का है इसका टोटल है टोटल, ये मार्जिन 363 मार्जिन के कॉस्ट का टोटल, सर कॉस्ट टोटल नहीं है, ये मार्जिन का बता मार्जिन कॉस्ट कितनी है? सर कॉस्ट 1,0363 मिलियन। मैंने फिगर्स पे डायरेक्ट ओके 1 मिलियन 1036 10,363 मिलियन, ये क्या है? 306 बस। ये तो ये बनेगा 1,36,300, ये है, ये इसकी टोटल कॉस्ट आ गई। इन तीनों को ऐड करके इसमें से सेल्स में से इसको माइनस किया, ये आ गया इसका 700 मार्जिन व्हिच इज 363,700 363,700। ये आ गया प्रोडक्ट मार्जिन B300 का। T500 का ये तीन कॉस्ट है, तीनों को ऐड कर दें 563,700 563,700। सेल्स में से माइनस करें, इसका मार्जिन आता है कितना है? 136,300 136,000। ये भी आ गया ठीक। 363,700 प्लस 136,300, इसको ऐड करें 1.6 मिलियन। क्या हो गया इसको सर? 363,700 प्लस 136,300, इन दोनों को ऐड करें 500 मार्जिन। yes ये सेल्स है टोटल, ये सीजीएस है, इसमें से इसको माइनस कर लिया आ गया। yes sir दिस इज मैजिक, इसको कहते हैं हाथ की सफाई। ठीक है, मैंने आंसर निकाल के दे दिया मैजिक से। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट एंड क्रॉस चेक। इसका फायदा ये है कि आपको हर जगह से क्रॉस चेक करके आप देख सकते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये चीज तो सही होगी, पहली चीज सही। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज using exhibit, we only have 5 minutes, so let's speed up. 711 as a guide complete the product margins for B300 T500 under the activity based costing system. ऊपर जाके नहीं देखते हैं, बड़ा टाइम लगेगा ऊपर जाने में, ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट करते हैं ताकि आंसर निकल आए। अच्छा, अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या करते होते हैं? हाँ, उसको क्या करते हैं? जल्दी जल्दी बताएं। एलोकेट करते हैं, एलोकेशंस कहीं पर हुई हैं पहले से? नहीं हुई, इसका मतलब एलोकेशंस करनी है भी आपने, ठीक है। एलोकेशन करने के लिए आपको डेटा कहां पे गिवन है? ये सारा डेटा गिवन है आपके पास। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 608, ये सब का अलग अलग आपको दे दिया उन्होंने, आपको चार कॉस्ट पूल्स दी। इसमें से एक जो है वो अदर है, वो एप्लीकेबल नहीं, अदर एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि उसका कोई कॉस्ट ड्राइवर या एक्टिविटी नहीं, उसको छोड़ दे। बाकी रह गए तीन, इस तीन को एलोकेट करना है। ओके, 213,500 मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मशीनिंग आवर्स। मशीनिंग आवर्स टोटल कितने हैं? 152,500 तो रेट क्या निकलेगा? 1.4 पर मशीन आवर। इसका रेट निकालते हैं, इसको तो बहुत सीरियस मसला हो गया। चलें यहाँ पे, ठीक है, व्हाइट बोर्ड छोटा हो गया। 213,500 कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्टिविटी, टोटल एक्टिविटी, 122 सो द रेट इज 1.4 1.4। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा? इससे, तो इसकी कॉस्ट आ गई जी। सर नेक्स्ट की 420 आती है। मुझे पता नहीं नहीं सर, ये नहीं रेट। इसका अच्छा पहले रेट फाइंड आउट करते हैं। चलिए पहले रेट फाइंड आउट। 157,500 डिवाइड बाय 375 जी 420 1.4 पर मशीन मशीन आवर पर सेटअप। machine hour in per setup. Okay, 120,000 divided by 2 60,000 60,000 पर प्रोडक्ट। per product. ये भी हो गया। अब आ जाए इधर। Okay, 90,000 multiplied by 1.4 126,000 126,000 62,500 multiplied by 1.4 87,500 इन दोनों को ऐड करें तो ये आना चाहिए। देखिए आ रहा है, अगर आ रहा है तो आपने सही किया, आ रहा है सही। आगे चलिए 75 multiplied by 420 20 31,500 300 multiplied by 420 126,000 126,000 plus 31,500 should be equal to 157,500 157,000 आ रहा है? यस ये भी सही।
60,000 multiplied by 1 multiplied by 60. 60 plus 60 120 आ रहा है? Yes. ये भी सही। अब इस सबको ऐड कर दे तीनों, इन तीनों 60, 31,500, 126,000, 903, 800। से एबीसी कॉस्टिंग में तो हमने वो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस भी डालना होगा ना 50,000 और 100,000 ये एक्सपेंस भी एलोकेट करेंगे। हमने किधर लिखा? हाँ वो लिखा हुआ है, वो हमने नहीं किया, वो भी एलोकेट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर वो सारे, क्योंकि अगर हमने पर यूनिट हाँ लेकिन अभी तो मैं उसमें नहीं पहुंचा ना। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग। Okay, so this is equal to 903,500 ये है? No, sir. 217,500. 217, तो ये किसने बोला? 217,500 yes 217,500, and this one would be equal to 273.5 273,500 सही है? These two equal कम आ रहे 491 490 491,000 plus 117 152,500. 608 Log है? 608,000 सही जा रहे हैं Yes. अभी तक से सही जा रहे हैं Yes. ठीक है गुड ओके 491,000 किया अब ये इनडायरेक्ट कॉस्ट आ गई इसमें डायरेक्ट भी ऐड करनी है डायरेक्ट कौन सी कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड नहीं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज नॉट डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग लेकिन ये कॉस्ट जो मैंने लिखी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस दिस इज आल्सो डायरेक्ट कॉस्ट सो दिस मस्ट बी एडेड एज वेल सो नाउ माय डायरेक्ट ये सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है जस्ट राइट इट एज इनडायरेक्ट कॉस्ट अब डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग ओके डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा है 436 300 डायरेक्ट लेबर 200,000 yes एडवर्टाइजमेंट 1,000 नहीं नहीं 50 50,000 50 and the other one is 100 100 okay direct material 251,700 104,000 okay so now this is my total cost total करेंगे total cost direct cost indirect cost add करके आती है ना ये indirect cost है direct cost है 903,800 and for this one 729,200 729,200 okay product margin के लिए sales minus cost sales आपने कहाँ पे लिखी थी so 1.4 million ये so 1,400,000 minus 903,800 इसका product margin आ जाएगा इसका B300 का जी 496,200 700,000 minus 720 इसमें तो लॉस हो गया yes negative 29,200 okay लेकिन अभी भी ये उसके इक्वल नहीं आएगा yes किसके इक्वल वो जो ऊपर नहीं करेगा अभी भी नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि अभी भी कुछ कॉस्ट है ऑर्गेनाइजेशन की जो मैंने इसमें से माइनस नहीं की वो कॉस्ट कौन सी है और कितनी है याद है इसको so other costs 400,000 इस 500,000 को हमें 50,000 को हमें आंसर लेकर आना है जी सर आप बताएं 400,000 your organization. पहले मुझे इसका बताएं इसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है so रिजल्टेंट 467,000 467,000 positive yes यस जी so now which cost we have not yet written over here सर हम इसको इक्वल क्यों कर रहे हैं ये तो सिर्फ प्रोडक्ट मार्जिन का पूछ रहे हैं हाँ लेकिन वैसे ही मैं चाह रहा हूँ कि चेक कर लूँ मैं सही है कि नहीं। ठीक है वैसे देखना चाहता हूँ so एक तो अदर कॉस्ट सर एक तो अदर कॉस्ट एक अदर कॉस्ट कितनी है 117,000 117,000 अदर और तो 350 रह गए और 400,000 की भी अदर कॉस्ट 400,000 के जैसे कि विचार मोबाइल ही नहीं ओके क्लास ये क्वेश्चन का दो पोर्शन हो गया और लास्ट वन भी देख रहे हैं उसके बाद वी विल कॉल इट ऑफ सो द लास्ट वन इज व्हाट Sir, बस कर. बस कर ये बेसिकली एक्सप्लेन है कि दोनों के दौरान फर्क क्यों आ रहा है ये दोनों के दौरान फर्क क्यों आ रहा है
Other ना Some manufacturing. ना हाँ non-manufacturing or manufacturing cost. वो क्या स्टेटमेंट क्या थी? Sir, some or most. Most of manufacturing costs are included in ABC, but not all. Yes. एक and some of Non-manufacturing. non-manufacturing costs are also included, but not all. और एक तीसरा रीजन था, तीन रीजन थे. There were three reasons. Allocation basis पे क्या? Allocation basis कौन सी होनी चाहिए? वो है closed pools. ना एक में प्लांट वाइज और एक ABC में मल्टीपल है। ट्रेडिशनल में प्लांट वाइज होता है Yes. और ABC में Cost pool. कॉस्ट पूल होते हैं, लेकिन फिर आगे मल्टीपल एक्टिविटी। आगे एक्टिविटी मेजर दोनों में डिफरेंट होते हैं। और से सुने हाँ एग्जैक्टली। इन ट्रेडिशनल सिस्टम वी ओनली हैव वॉल्यूम बेस्ड, whereas in ABC we have volume plus non-volume based. This is the third reason. मैं एग्जाम में आपसे तीनों रीजन पूछूंगा, दो देंगे, दो का आपको वो मिलेगा, मार्क मिलेगा, तीन देंगे, तीन मार्क मिलेंगे, सिंपल ऐसा। ठीक है, तीनों रीजन आपने मुझे देने हैं। इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें हर एक चीज आएगी, तो मतलब पूरा चैप्टर आएगा तो ये क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अगर एक गलती शुरू में कर दी तो वो गलती नीचे तक जाएगी, सब कुछ गलत हो जाएगा। तो इस वजह से बहुत एहतियात से आराम से करना, मुश्किल नहीं है, लेकिन सोच समझ। बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू गो इनटू द एग्जाम। बार बार अपने स्टूडेंट से कहता हूँ मेरे एग्जाम में जाते हुए कॉन्फिडेंट होके जाना है। अगर पहले से डर जाएंगे तो नहीं, बस बी कॉन्फिडेंट। ओके, थैंक यू क्लास।